आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जब हम लोग इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे इसका, तो उसमें जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं और जो चीजें हैं वो कवर कर लेंगे वहां पे, क्योंकि वहां में कंप्लीट डिस्कशन एक बार में करना होगा। बट अभी हम लोग, मैंने आपको बताया था ना, पार्शियली सारे सेक्शंस पढ़ लेंगे, तो उसके बाद कंबाइन करेंगे तो वो हमें आसान लगेगा। तो जब प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रामिंग मॉडल है तो इसका फोकस जो है प्रोग्रामिंग की तरफ होगा। तो जो प्रोग्रामिंग मॉडल है इसको अगर हम यहां पर बनाएंगे, यू कैन मेक इट लाइक here we are writing 8 in bracket of, so it means ki these are 8-bit registers, and if I am writing here 16, it means it is 16-bit register. Okay, this is address bus and this is data bus. Clear? तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि A is the accumulator, here F is the flag register, SP is stack pointer, and PC is program counter. तो हमारे पास जो 8 बिट के रजिस्टर्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हो गए? A, B, C, D, E, H एंड L। और अगर हम 16 बिट रजिस्टर्स की बात करें तो ये BC हो सकता है, DE हो सकता है और HL हो सकता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद इसी में हमारे दो क्या आ रहे हैं? SP एंड PC, बट दीज आर फॉर सम स्पेशल पर्पस, उसको हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो यहां पर हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है A, B, C, D, E, H और L का। ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, इनके लिए हम क्या कहते हैं? GPR। ये सब क्या है? GPR, स्मॉल s लगा लें, इसका मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, हियर A फुलफिल सर्टेन स्पेशल पर्पस, तो A को SPR भी कह सकते हैं। SPR स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस रजिस्टर एंड GPR स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर। नाउ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि BC, DE और HL कैन बी कंबाइंड टू परफॉर्म एनी 16-bit ऑपरेशन। ठीक है, एंड फॉर 8-bit ऑपरेशन वी कैन टेक एनी ऑफ दीज रजिस्टर्स इंडिविजुअली। नाउ अब हमें जो, और ये भी ध्यान रखिएगा कि वी कैन नॉट मेक इट CB, we cannot make it ED, or we cannot make it LH, or we cannot make any other combination. These are fixed combinations, either it is BC, DE or HL. And HL की स्पेशलिटी क्या थी जो हम लोग पढ़ रहे थे? This can be used as a memory pointer. It means if we are keeping something in HL, then the content of that particular memory location will be in M. पढ़े थे हम लोग, याद होगा हम लोग को। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा डिटेल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट किसकी है? F, SP और PC। F, SP और PC। Rest is already covered. A is the accumulator, which is a special register because it holds the
content of one of the memory location in case of any arithmetic or logical instruction. Similarly, in case of any arithmetic or logical operation, one of the operand will be stored in accumulator. ये हम लोग डिस्कशन कर चुके थे और हमने BCDE-HL का भी कॉम्बिनेशन देख लिया था. जहां भी हम लोगों को लिखना होगा, इफ आई एम राइटिंग समवेयर R means I am talking about 8-bit register. If I am writing somewhere RP, it means I am talking about register pair. So register pair means BCDE and HL, and we never write BCD and HL. We will write B for BC, D for DE, and H for HL. ठीक है. Now we'll discuss this F, SP, and PC in detail. Rest is already discussed. So F is the flag register. Okay, we can take another page for F, flag register. This is also called status register. This is also called status register. We can draw it here. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. This cross indicates don't care. This is the register pattern of flag register. Here cross indicates don't care, है ना? And S stands for sign flag. Z stands for zero flag. AC stands for auxiliary carry flag. P stands for parity flag. And C stands for carry flag. We are writing its conditions. We'll discuss it soon. Any doubt? You just write it. We'll discuss. Okay. Equal to 0 if this is sign flag is equals to 1 if D7 is equals to 1 and sign flag is equals to 0 if D7 is equals to 0. Similarly, for zero flag, this will be equals to 0 if result is not 0, and this will be 1 if result is 0. We'll discuss it with an example, then you will understand. If result is 0, zero flag equals to 1 if result is 0. Auxiliary carry flag is equals to 1 if carry from D3 to D4 is equals to 0 if no such carry is equals to 1 if carry from D3 to D4 equals to 0 if no such carry. No such carry means opposite condition to that of the first one. Parity flag is equals to 0 if odd number of ones is equals to 1 if even number of ones. Okay, now let's do the discussion for this. First line, you can write here, flags are affected only by arithmetic and logical instructions. It means if we are performing certain arithmetic or logical operation in any program, then only flags will be affected. These will not be affected if we are performing any data transfer or branching or machine control operation. Yesterday we wrote five kind of operations: data transfer, arithmetic, logical, branching, and machine control.
So flags are affected only by arithmetic and logical instructions, or we can say operations. Instructions or operations. ठीक, clear. So now we'll take one example to understand this. Otherwise ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ. So देखिए, जब भी हम किसी भी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसर कितने बिट का है ये उसकी डेटा बस बता रही है. अगर हमारा 8 बिट का प्रोसेसर है, सो वी कैन ड्रॉ द बिट पैटर्न लाइक 8 बिट का प्रोसेसर है, इसका मतलब ये जब हम कोई भी टास्क इससे कराएंगे तो रिजल्ट हमारा 8 बिट का रहेगा. तो अगर 8 बिट का प्रोसेसर है तो दिस इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7. ऐसे कोई रिजल्ट आएगा. अगर एक्सीड करेगा तो एक कैरी आएगा. यहां से कैरी का लिखना भूल गया मुझे. इक्वल टू 1 0 इफ नहीं 1 लिखो. इक्वल टू 1 इफ कैरी आउटसाइड D7 is equal to 0 if no such carry. Carry flag equals to 1 if carry outside D7 and equals to 0 if no such carry. अब इसको समझते हैं. देखिए, अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ही हैं हमारे जो इसको अफेक्ट करेंगे. तो हम एक कंडीशन लेके चलते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की. ठीक है, यहीं पर यहां हमें कुछ करना पड़ेगा. आई थिंक वी कैन रफ हियर. You can see here. Suppose I am performing a addition operation. These are affected by either arithmetic or logical. Suppose I am performing a addition operation and I am adding B6 and 9C, and the both are in hexadecimal because we are generally operating in hexadecimal in all kind of processors, है ना, most of the cases. तो यहाँ पर B6 और 9C को हमें ऐड करना है. हेक्साडेसिमल है. अगर मैं इसका बिट पैटर्न में इसको लिखूं, देखिए अब जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम B6 और 9C को ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे. अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोग्राम ये टास्क परफॉर्म कर रहा है. इट मींस वी आर एज्यूमिंग कि प्रोग्राम इज एडिंग B6 एंड 9C. तो अगर इसको हम बिट पैटर्न की फॉर्म में लिखें तो B को क्या लिखते हैं? B को बताइए क्या लिखेंगे? 4 बिट्स में आएगा ना B. 4 बिट्स में क्या होगा? 1 0 1 1. 6 कितना होगा? 0 1 1 0. 9 कितना होगा? 1 0 0 1. C कितना होगा? 1 1 0 1. चेक कीजिए इसको. B एंड C. B एंड C 1 1 0 0. 1 1 0. So is it okay? Okay. हाँ ठीक. और सिमिलरली हियर इट इज. ठीक है, क्लियर है. 1 0 1 1 and 1 1 0 0 both are okay. Now if I am performing bit by bit addition, here it will be 0 1, then 1 1 0. Here it will be 1 1 1 again 0. It will be 1 1 1 0, then 1 11. Here it will be 1 1 1 again 0, and then 1 and then 1 1 0 and here 1. You know the concept of addition? 1 1 is 10. है ना? हाँ. So if we are performing, we are getting this. Now this status is dependent on this particular sequence. It means the result which we are getting after any arithmetic or logical operation. So arithmetic या logical operation के बाद जो result आ रहा है उसके basis पे हमारे flag effect होते हैं. You cannot compare directly this with this. कई बार आप ऐसी गलती करेंगे कि आप इसको उठा के इससे कंपेयर कर देंगे कि भाई किससे कौन सा मैच हो रहा है. ऐसा नहीं होता. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू सी कि इन दिस फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम D0 टू D7 ओनली. पहली बात ध्यान रखिएगा कि हम जो कंसीडरेशन करेंगे दैट विल बी फ्रॉम D0 टू D7 ओनली. यानी कि जो 1 एक बाहर आ गया वो हमारा कैरी है. एनालिसिस विल बी ऑलवेज फ्रॉम D0 टू D7. So here it is D0 and here it is D7. जो हमने डिस्कशन के लिए लिया है. तो ये रिजल्ट हमारा D0 से D7 का तो हमारा मेन रिजल्ट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. जो 9th वाला है इसे इस एनालिसिस में कंसीडर नहीं करेंगे. ये बाहर हमारा यहाँ रखा हुआ है. इसको नोट डाउन कर लेते हैं अभी.
तो जब अब हम देखिए पहले देखते हैं साइन फ्लैग। साइन फ्लैग का मतलब है अगर D7 1 है तो 1 और D7 0 है तो 0। यहाँ पे D7 क्या है बेटा? D7 0 है, सो दिस S विल बिकम 0 फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन जो हम यहां लेके चले। नेक्स्ट Z जीरो फ्लैग, क्या ये रिजल्ट 0 है? नहीं, ये रिजल्ट 0 कब होगा? जब ऑल 0 होंगे। तो ये रिजल्ट तो 0 नहीं है, जब ये रिजल्ट 0 नहीं है तो इसके आंसर कितनी हो गई? 0 नहीं बेटा, अगर रिजल्ट 0 होगा तब 1 होगा। अगर रिजल्ट 0 हो गया तब ये 1 है, रिजल्ट 0 तो नहीं हुआ है, 0 का मतलब ऑल 0, तो रिजल्ट 0 होगा तब वो 1 होगा, लेकिन रिजल्ट अभी नॉन 0 है तो ये 0 हो गया। ऑक्सिलरी कैरी, इज देयर एनी कैरी फ्रॉम D3 टू D4? ओके, काउंट इट, D0, D1, D2, D3, दिस इज D3, this is D4. Are we getting any carry from D3 to D4? We are getting a carry. So we are getting a carry, it means it is 1. It means it is 1. Clear? We are getting a carry na from D3 to D4. See, I am giving you an example. आपको उसके बाद याद रखना पड़ेगा हमें कैसे करना है। Process you have to remember. Next is parity flag. कितने नंबर ऑफ वंस हैं? इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ये सेपरेट रखना है, पूरे में मत गिन लेना, गलत हो जाओगे। कितने हैं? 1 2 3, 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब ये कितना हो गया? 0। क्लियर? नेक्स्ट सी कैरी, क्या कैरी आया है? यस, सो दिस इज 1। सो दिस इज द आंसर यू विल डेफिनेटली गेट इन योर एग्जामिनेशंस, ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस आई थिंक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बिट पैटर्न हमारा, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि देखिए, अब कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि B6 और 9C को ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन होगा इफ आई एम एडिंग 2 नंबर्स थ्रू द प्रोग्राम। तो अगर आपसे ये दोनों भी ऐड कराएंगे तब भी आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, यानी कि एडिशन यू हैव टू परफॉर्म थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि एडिशन परफॉर्म कीजिए और फिर बताइए कि फ्लैग के स्टेटस क्या होंगे। तो फ्लैग के स्टेटस क्या होंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे एडिशन परफॉर्म करने के बाद, और उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि S क्या आ रहा है, Z क्या आ रहा है, AC क्या है, P क्या है और C क्या है। और मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इसका कंबाइंड लिख के दिखाओ, तो दीज आर डोंट केयर, यू कैन राइट 0 फॉर ऑल डोंट केयर्स, यू कैन एज्यूम, आप एक लाइन लिख दीजिए एंड यू कैन राइट कि आई एम एज्यूमिंग ऑल डोंट केयर्स टू बी 0, आई एम एज्यूमिंग ऑल डोंट केयर्स टू बी 0. So the answer here is 1 and 1. So the answer is 1 1 H. The combined answer of the status register, यानी कि what is the value of flag register। देखिए इंडिविजुअल फ्लैग्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि what is the value of flag register, तो आप उसमें एक लाइन क्या लिखेंगे? I am assuming don't care as 0, और उसके बाद ये बिट पैटर्न हम कंबाइन कर देंगे। बिट पैटर्न कंबाइन हमने कैसे किया? 4 4 का कॉम्बिनेशन होगा हेक्साडेसिमल के लिए, और ये कंबाइन होके 1 बन रहा है और ये भी कंबाइन होके 1 बन रहा है, सो द आंसर इज 1 1। दिस इज द स्टेटस ऑफ स्टेटस रजिस्टर, और वी कैन से फ्लैग रजिस्टर। गॉट इट? सॉरी, डोंट केयर। सो डोंट केयर मींस इन 8085 प्रोसेसर whatever registers are available, they are of 8 bits because it is 8-bit processor, but we are having only 5 flags, so we have to put 3 flags in don't care condition। ठीक है, similarly in 8086 we will be having a 16-bit register because that is of 16-bit, but in that we are using only 11 flags, so 5 are don't care, so it depends that how much data we are using। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है? जब हम देखिए मान लें Z है, S है, AC है, P है, C है, सभी का कुछ ना कुछ यूज होगा, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बनाया जाता है। तो AC जो साइन फ्लैग है इसका यूज क्या है? ये 1 और 0 की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम कहीं साइंड ऑपरेशन करते हैं तो साइंड ऑपरेशन का मतलब 1 इंडिकेट से नेगेटिव नंबर एंड 0 इंडिकेट से पॉजिटिव नंबर। सो फॉर दैट पर्पज वी यूज द साइन फ्लैग, कि हमारा जो भी है वेदर द नंबर पॉजिटिव ऑपरेशन या नेगेटिव ऑपरेशन, यानी कि जब हम साइंड ऑपरेशन करते हैं तो साइंड ऑपरेशन में हमें नंबर को ये देखना है कि प्लस है या माइनस है। अनसाइंड ऑपरेशन का मतलब वी आर टेकिंग नंबर कि वो प्लस ही है, एंड साइंड ऑपरेशन का मतलब वी आर कंसीडरिंग वेदर द नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सो फॉर दैट ऑपरेशन वी यूज द साइन फ्लैग। जीरो फ्लैग का मतलब कि किसी कंडीशन में मान लीजिए हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है और टास्क हमें 10 टाइम्स परफॉर्म करना है,
तो आफ्टर परफॉर्मिंग टास्क 10 टाइम्स वी हैव टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, कि उसके बाद हमें काम खत्म कर देना। तो वो कैसे पता लगेगा? वी कैन चेक जीरो फ्लैग, क्योंकि जब हम कोई टास्क मान लीजिए 10 टाइम्स करना है, तो 10 टाइम्स को हम डिक्रीज करते जाएंगे, और डिक्रीज का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वी आर डूइंग सम अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस z will change, and in the last that 10 will become 0 and flag will change, and when that 10 will become 0, so z will become 1 here. So we can check the status of z and we can come out of the program और situation जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी, दिस इज यूज फॉर बीसीडी ऑपरेशन, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें हम 4 के कॉम्बिनेशन पे परफॉर्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो D3 से D4 के लिए हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि D3 से D4 पे 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो, ये देखो, यहां से यहां तक जब आप लेंगे कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 4 का हो गया ना। ये D3 से D4 जा रहे हैं, मतलब हम देखिए यहाँ D3 D4 का ये वाले कैरी की बात करेंगे, मतलब 4 में ब्रेक कर दिया ना इसको। तो दिस इज यूज फॉर बीसीडी नंबर्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो हम आगे कुछ प्रोग्राम्स में यूज भी करेंगे। नेक्स्ट इज पैरिटी। पैरिटी का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। सो इसका यूज कहाँ करते हैं? जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो बिट पैटर्न में जाती है, कम्युनिकेशन लाइंस में बिट पैटर्न में जाती है इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं एक सिचुएशन ये भेज सकता, एक मतलब अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ कि इसमें जो है इवन नंबर ऑफ वंस है, तो अगर डिस्टॉर्शन होगा तो एक बदलाव आ सकता है मैक्सिमम, तो ऑड नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे, तो स्टेटस हमारा पैरिटी का चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि अगर 2 डिस्टॉर्शन आ गए, 1 और 0 का मतलब क्या है? 5 वोल्ट की सप्लाई या 0 वोल्ट की सप्लाई। तो अगर 2 डिस्टॉर्शन आ गए तो हम इस कंडीशन पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक हमारा एक डिस्टॉर्शन आया है तो वी कैन यूज दिस पैरिटी स्टेटस। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग का मतलब यह है, मान लीजिए हमें 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो 2 नंबर ऐड किए तो कैरी आया, फिर उसको तीसरे से ऐड किया तो उस कैरी को यूज करना पड़ेगा ना, फिर उसको चौथे से यूज ऐड किया तो उस कैरी को फिर यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रोसेसर की बात करें तो 2 नंबर करके ही ऐड कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड 5 numbers or 10 numbers directly. We have to add 2 numbers, then addition will be performed with the 3rd number, then next result will be performed with the 4th number. तो हमको मल्टीपल टाइम एडिशन करना होता है, तो कैरी को तो यूज करना ही पड़ेगा बेटा। तो ये इन सब का हमारा यूज हो गया। सो दिस इज फॉर साइंड ऑपरेशन। ये किसके लिए हुआ? साइंड ऑपरेशन, है ना। और ये किसके लिए हुआ? जेड, जीरो कंडीशन चेक करने के लिए। एसी बीसीडी नंबर्स के लिए हुआ। पी हम कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और कैरी हमारा एडिशन है, जो भी परफॉर्म करेंगे तो हमें कैरी की सिचुएशन का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हम आने उसमें आगे उसको ऐड करते रहे, वरना रिजल्ट हमारा गलत आएगा। गॉट इट? एंड वी कैन टेक वन मोर प्रॉब्लम। ओके, इफ यू आर चेंजिंग नाउ दिस, we'll take one more situation. Okay, suppose we are adding 23 and 95. Okay, this is one more example. We can take one more example. So we can take one more example. Now here एक और डिस्कशन कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको बिट पैटर्न में लिखिए, 0 0 0 1 0, ये 0 0 1 1, ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1 0 0 1, दिस विल बिकम 0 1। क्लियर? नाउ वी कैन ऐड हियर 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है। सो हियर द आंसर्स विल बी एस विल बी एस कितना आएगा? 1। हम लोग तो 8 में ही देखेंगे ना, 1 हो गया। जेड कितना होगा? 0। एसी कितना होगा? 0 है, क्योंकि यहां से यहां कुछ भी नहीं आया, यहां से यहां आया था बस। नहीं, हाँ, जेड 0 होगा बेटा। जब तक रिजल्ट 0 नहीं होगा तब तक जेड 0 है, जब रिजल्ट 0 होगा तब जेड 1 होगा। ठीक। ऑक्सिलरी कैरी हमारा कोई कैरी नहीं है तो 0 आएगा।
नेक्स्ट हमारा हो गया पैरिटी, 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ वंस है, तो पैरिटी हमारा 1 आएगा। और कैरी, क्या कोई कैरी आया है? नहीं, तो ये हमारा 0 आ गया। और अगर इसको कंबाइन करके हमें लिखना पड़ता है, देन अगेन वी कैन राइट ए स्टेटमेंट कि आई एम कंसीडरिंग x टू बी, x का मतलब डोंट केयर टू बी 0, एंड वी कैन कंबाइन द बिट पैटर्न एंड वी कैन से कि दिस इज द स्टेटस ऑफ फ्लैग रजिस्टर। ठीक है। तो अब इसको हम एक बार इसका अगर बिट पैटर्न लिखें तो क्या हो गया 1 0, और हम x को 0 ले लेते हैं, देन 0 देन 0 देन 1 देन 0 देन 0। सो इसका कितना आ गया 8 4 H। So this is the answer for this particular situation. So in this way we can calculate the flag register status। ठीक, एस जेड एसीपीसी कैसे कैलकुलेट हुए, कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, लेकिन जब भी कंबाइन करके लिखेंगे तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि आई एम एज्यूमिंग एक्स वेदर इट इज 0 और इट इज 1। डोंट केयर मींस आई डोंट केयर वेदर इट इज 0 और 1, बट आई हैव टू एज्यूम समथिंग, वरना एक्स के आधार पर नहीं लिख सकते ना कुछ भी। गॉट इट? ओके, मूविंग टू